the period of years, we became the model college of the state. हम चाहते हैं कि बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. We also provide various professional programs at our university. We are the pioneers in Rajasthan जिन्होंने NEP फॉलो करा है UGC गाइडलाइंस के थ्रू. They don't help just academically, but outside professionally and personally as well. Integrated course है. So and also extracurriculars की बात भी आए तो I'm a comparer. So I get to do all the things I like, and it's also quite flexible, I feel like. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो, जहां आज हम बात करेंगे कैंपस की. और कैंपस की बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं ICG कॉलेज, और इसमें हम बात करने वाले हैं ICG कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में. वो बातें आपको पता लगेगी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी. आज हम बात करेंगे फैकल्टी से. कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो वाई टू चूज़ ICG वो भी आपको पता चलेगा. और स्मार्ट सॉल्ट पेपर एंड संडीवो प्रेजेंट्स कैंपस की बातों में आज हम जानने वाले हैं वो राज जो आपने नहीं सुने होंगे. मेरे साथ यहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ मौजूद हैं. शरद मैम, मोस्ट वेलकम ऑन आवर वीडियो. Namaskar. मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस कैंपस में कितने सालों से हैं? I am here from the inception of this university. We Oh, started wow. in the year 1995, and since then I am here. देखिए, we started as a international college for girls. ये हमारा जो विजनरी फाउंडर जो रहे हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता, ये उनका बहुत ही एक प्यारा सा विजन था. He wanted to hold those students who wanted to migrate from Rajasthan in search of very good education, English medium girls education, to bigger cities like Bombay, Delhi. So he wanted to have a university which could cater to them, and that's the very, very core essence from which the university was started. So we were just about 65 students in the beginning, and just about 6 to 7 teachers from which it started. Of course, we all worked under the guidance of our patron, Dr. Ashok Gupta, and since then, it's never been looking back. So we started with, over the period of years, we became the model college of the state. We became the college for potential for excellence. Then we were accredited in 2007, we became the autonomous college of the state. And then in the year 2009, we became the deemed to be university status, a status that we have continued till now. Yes. And today we can vouch for it that we are rated amongst the best class 8, category A universities, deemed universities of the country. वेरी नाइस. मैम ने एक सांस में सारा बोल दिया है. मैं चाहती हूँ कि 6 to 7 टीचर से लेकर अब इतने बड़े कैंपस तक जो आपने सफ़र देखा, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में जब भी बात की जाती है तो ICG का नाम जयपुर के टॉप कॉलेजेस में आता है. मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के आप नाम बताएं जो आपका नाम वर्ल्ड वाइड रोशन कर रहे हैं. बहुत ज़रूरी है ये बात जाननी, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है अरुणा राजौरिया. शी वॉज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, and today she is in the IAS cadre, and she heads Assam, and then we have Yasha Mudgal, who is in the Jammu cadre. Then we have other girls such as Bhavika Thanvi, who's very recently become an IAS officer. Beyond that, we have many girls who are in the defense, like Hina Pore is one of the girls who is I think a squadron leader in Indian Air Force. We have Deepika Singh, who's also joined the Indian Air Force, and we have lots of girls who are making their careers as entrepreneurs and have their own startups in the city and as well as in the other parts of the world, even in New York and other countries there. वेरी नाइस. सो IAS बन रहे हैं, RAS बन रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी दूसरी फैकल्टीज़ से भी, जब क्वालिटीज़ की बात की जाती है तो अ पार्ट ऑफ स्टडीज़ कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ पे आप लोग फोकस रहते हैं कि नहीं, बच्चे में पढ़ाई के अलावा ये भी होना चाहिए जिससे आप लोगों को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करें? हम चाहते हैं कि बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. एंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ कि जो हम सिखा रहे हैं क्लासरूम में, दे शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू हाउ दे आर गोइंग टू बी इन द प्रोफेशनल सेटअप. सो एक ये बहुत मेन फोकस रहा है. और अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे कि बच्चे जो भी हमारे अलुमना रहे हैं, दे हैव ऑल एक्सेल्ड, दे हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट. हमने UK US में भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं
we've had them and they've had campus placement. So the grooming is happening in classrooms, beyond classrooms also, but the results are seen right after they are finishing their course. तो अभी हमने पहली यूएसपी सुनी है, अब जानते हैं दूसरी फैकल्टी से कि यूएसपी नंबर 2 क्या है मैम, बताएं। Ma'am, along with the conventional programs like BA, BCom, BSc, we also provide various professional programs at our university, such as BCom Honours Professional Chartered Accountancy, BCom Honours Professional Company Secretaryship, BCom Honours ACCA program, and also we are offering MSc Biotechnology under DBT scheme. तो इसका मतलब साफ है कि आपको लीक से हटकर पढ़ाई करनी है, कुछ अलग कोर्स करना है तो आपको आईसीजी आना है। यूएसपी नंबर 3। तो जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है उनके लिए भी IIS यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है। हमारी लेबोरेटरी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। प्लस हम यूजी लेवल पे भी बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ़र करते हैं जो मेरे ख्याल में कोई और यूनिवर्सिटी शायद नहीं ऑफ़र करती है। सो ये जो लेबोरेटरीज़ हैं हमारी, ये यूजी, पीजी, पीएचडी सभी बच्चों के लिए हैं। सभी बच्चों के लिए, यानी कि सब कुछ एक ही रूफ के नीचे यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब अगली यूएसपी मैम बताएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है। वी आर द पायनियर्स इन राजस्थान जिन्होंने NEP फॉलो करा है UGC गाइडलाइंस के थ्रू, एंड इस वजह से हमारे कोर्सेज जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। उनको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, इन सब का बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी से। फ़ायदा क्या क्या मिल रहा है ये आपने सुन लिया। अब यूएसपी नंबर 5 जानते हैं मैम से। आई थिंक आपको यहाँ बच्चे नेशन के हर कोने से मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी है हमारे, वी रिस्पेक्ट इंक्लूजन, हम हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं और इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और आई वुड से 21st सेंचुरी स्किल्स, आज जो यहाँ बच्चा आता है वो जब कैंपस से बाहर निकलता है तो दैट पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहर से आए हुए बच्चे को भी अगर अपनापन महसूस होता है किसी यूनिवर्सिटी में तो वो बच्चा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, अगर टीचर्स का इतना सपोर्ट मिल रहा है और वो सब मिल रहा है आईसीजी में। चलिए अब बच्चों से पूछ लेते हैं कुछ। कितने सालों से यहाँ पर हैं, मतलब 3 ईयर 4 ईयर? मेरा 5th सेमेस्टर है और मैं अभी BCom ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ, स्पेशलाइजिंग इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आईसीजी क्यों चूज़ किया? देर आर मैनी रीजन्स एक्चुअली। पहले तो इसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, दे डोंट हेल्प जस्ट अकेडमिकली बट आउटसाइड प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल। दे प्रोवाइड थिंग्स दैट दूसरी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इंक्यूबेशन सेंटर है दैट हेल्प्स विद एंटरप्रेन्योरशिप्स एज वेल, जहाँ बच्चों को इंकरेज किया जाता है कि नॉट जस्ट जो तुम लर्न कर रहे हो वो तुम्हें एक एक्सपोजर भी मिले प्रैक्टिकली भी। वी हैव मैनी सोसाइटीज़ एज वेल, एलिप्सिस हो गया, मुद्रा हो गया, where teachers itself encourages us to participate in those societies as well, कि आप सिर्फ academic पे फोकस मत करो पर खुद के एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी करो। सो दिस प्रोवाइडेड वेरी नाइस मैसेज इन्होंने दिया है कि क्यों आईसीजी इन्होंने चुना। यहाँ कोई बाहर से है, जयपुर के बाहर से कोई? आप हैं बाहर से, तो कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आप जयपुर में आई आईसीजी में, क्यों? Well, specifically this college, I am an ACCA student as well, so BCom Honours and ACCA, and I feel like इस college में integrated course है, so and also extracurriculars की बात भी आए तो I'm a comparer, so I get to do all the things I like and it's also quite flexible I feel like, and Jaipur is also a wonderful place, so yeah. हाँ, जयपुर इज़ ऑल्सो ए वंडरफुल प्लेस, ये भी इनकी प्रायोरिटी में था। आपने बिल्कुल सही कहा है ये। वॉट अबाउट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स का अगर एक्सपोजर के बारे में बात करूँ तो आप लोगों में से कोई है जो कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है, फैसिलिटीज ले रहा है? जी, करंटली आई एम अ कैडेट इन NCC और वो स्पोर्ट्स के साथ भी काफ़ी इंटीग्रेटेड है। सो इन स्पोर्ट्स वी गेट टू डू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब ये नहीं है इट्स बाउंडेड टू वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। देयर आर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भी जाते हो, एंड आई थिंक इसमें यू कैन मेक योर करियर। इट्स नॉट जस्ट देयर टू बी अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट्स मोर देन जस्ट दैट। यू गेट टू बी देयर एज a champion, you get to be there as a sports person in future as well, so yeah. Women चैम्पियनशिप की अगर हम चर्चा करें तो हमारी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टीमें अभी पूरे वर्ल्ड वाइड रूल कर रही हैं, एज़ यू नो। क्रिकेट में भी हैं, ब्लाइंड क्रिकेट में भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जब हम कैंपस में बच्चों को भेजते हैं
ऑलराउंडर बनने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग कैसे सेग्रीगेट करते हैं कि नहीं इनकी स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर देखिए, हमारे यहाँ we have lots of activities and for every students according to their interest, abilities, capabilities we have. So those who are already then they can excel in the sports. We have different sports activities, we have cultural activities, so many co-curricular activities. So we have cell, we have experts in our university within a campus. We have trainers and coach. So we provide excellent services, excellent training to all the students, those who are interested in their exact fields. वेरी नाइस सर। अब मैं सिर्फ आप में से किसी से भी 5 ऐसी चीज़ें पूछना चाहूँगी जो आईसीजी को रिप्रेजेंट भी करती हैं और वाई टू चूज़ आईसीजी। कोई सी भी ऐसी 5 चीज़ें कि क्यों आए बच्चे आपके पास। मैम देखिए, हमारे यहाँ जनरली दिस इज़ अ वुमेन यूनिवर्सिटी, सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन विल मूव फॉरवर्ड एंड गेट मैरिड, सो दे डू नॉट हैव elongated years to make their careers. So the one feature, if you ask me, is the career oriented and skill development courses. They are called as COSD courses or add-on courses. So we have about 40 courses of such sort, or if you do it for 1 year you get a certificate, if you do it for 2 years you get a diploma, and if you pursue it for 3 years you get an advanced diploma. So along with your degree, when you graduate from this university, you're not only having a degree of a graduate, you're also having a certified skilled certificate or a diploma with you. So your employability in the market when you go for your job interview is always better than the other students who come from the other universities, because you have an additional degree with you. So if you ask me, COSD is the thing that I would go in for if I were to take admission in IIS University. तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ बच्चा बाहर जाकर अपना स्किल्ड डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड। किस तरह से आईसीजी के बच्चे रूल कर रहे हैं ये भी आपने जाना। तो आज था आईसीजी का कैंपस, और आईसीजी के कैंपस में आज हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करी। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ऐसे ही हम कैंपस दिस कैंपर चलते जाएंगे पूरे राजस्थान में। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे, उसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक सारी बातचीत करेंगे। स्मार्ट सॉल्ट पेपर प्रेजेंट्स एंड संडीवो प्रेजेंट्स कैंपस की बातों में। आप देखते रहिए हमारे वीडियोज़।